देव समाज कॉलेज सेक्टर 36 में आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, जिसमें मैडम अग्नीश टिल्लन मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत कर रही हैं। मुख्य मेहमान मैडम अग्नीश टिल्लों, सेक्रेटरी देव समाज कॉलेज मैनेजमेंट, रिबन काटते हुए। बच्चे तालियां बजाकर टीचर्स का स्वागत करते हुए। And welcome to our college community. It is with great excitement that we gather here today to celebrate Teachers' Day. On behalf of the entire college, I would like to welcome Professor Agnees Dhillon, Secretary Dev Samaj and Secretary College Management, Dev Samaj College of Education, Chandigarh. Your leadership inspires us every day, ma'am, and your vision for our college is truly remarkable. Ma'am, your commitment to our education is invaluable, and we are very grateful to you for your continuous support and guidance. Ma'am is the role model for all the teachers, as she possesses great qualities of a teacher in herself, like empathy, discipline, humanity, and spirited human being. We bow our head in your respect, ma'am. A very warm welcome to you. I am also very delighted to welcome Professor Richa Sharma, Principal, Dev Samaj College of Education, Chandigarh. We are very honored to have you as our principal, and under your leadership, our college will continue to be a shining example of excellence in education. A very warm welcome, ma'am. I would also like to extend a heartfelt welcome to the representative team of Raj Vidya Kendra, which helps in the dissemination of Mr. Prem Rawat's message of peace, humanity, and inner strength throughout to one and all. Now, I request our honorable man to do a green welcome of our respected Secretary, Ma'am, Professor Agnees Dhillon, and of today's guest. Pickett.
encouraging, responsible. That is, the one who educates and helps students to solve their problems related to academics and life. Now, on this auspicious occasion of Teachers' Day and on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, our college feels very delighted for the book release event of the book Hear Yourself, authored by Mr. Prem Rawat, and its Hindi version, Swayam Ki Awaaz, is also available. A huge round of applause, everyone. हैप्पी टीचर्स डे मैम। मेरा नाम फूलजहाँ, मैं आपके सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इग्नीस मैम को, क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल और सबसे ज़्यादा कहेंगे हमारे मेंटर हैं, हमारे सेकंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना डिसिप्लिन सिखाया, जो वैल्यूज़ एज अ टीचर होनी चाहिए वो हमें सिखाई, और हम आगे स्टूडेंट्स को वही चीज़ सिखा रहे हैं। तो जो हम आगे जाकर बनेंगे वो सिर्फ इग्नीस मैम की वजह से और बाकी सारी टीचर्स की वजह से। तो थैंक यू मैम। So I wish all my teachers a very happy Teachers' Day, and I'm grateful to be a part of witnessing such good teachers who are not just teaching to the best but actually a very good human. Thank you so much. Happy Teachers' Day. हेलो, मेरे पीजी डिप्लोमा के इंचार्ज करुणा मैम हैं, एंड करुणा मैम हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव, एंड उनके जैसा टीचर आई डोंट थिंक मुझे कभी लाइफ में मिला है। शी इज़ स्टर्न व्हेन शी नीड्स टू बी, एंड शी इज़ हम्बल व्हेन शी नीड्स टू बी, शी इज़ पोलाइट व्हेन शी नीड्स टू बी, शी इज़ always there to support us. Hello everyone, happy Teachers' Day, and I would like to say that all the teachers in our college, they are amazing, incredible, and we all love them, and they are so supportive and so kind and understanding also. Thank you. Hello, happy Teachers' Day to all the teachers out there. यहाँ के जो teachers हैं, they are very supportive. अग्नीस मैम, प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रीचा शर्मा, और जितने भी सारे teachers हैं, they are very humble, they are so down to earth. So we are celebrating Teachers' Day in Dev Samaj College of Education today. Now, before starting our today's celebration, we'll proceed with the honoring ceremony of the newly elected Student Council members for the year 2024-2025. And I request respected Agnes ma'am and respected Richa ma'am to please come forward and do the honors. Anita ma'am, Kiranjit ma'am, Anuradha ma'am, to please come on the stage and do the honors. Faculty, please join. Amina Khatun to please come. Let's hear it for them, everyone. A huge round of applause. Congratulations, Amina, for the post of Secretary, Ayushi. And congratulations. Congratulations, Shivani, for the new post. Everyone, please put your hands together. It actually motivates them. I request Seema ma'am, Harpreet ma'am and Karuna ma'am to please come on the stage and do the honors. Kamini ma'am and Rajbir ma'am also please come on the stage and do the honors. A huge round of applause for the faculty and students. We are supposed to respect our teachers. Please put your hands together for the faculty. For the post of class representative MX second year, I request Jasjeet Pal Kaur to come on the stage. Congratulations, Jasjeet. Jasjeet Pal Kaur. Okay.
For the post of class representative of postgraduate diploma in guidance and counseling, I request Kinshita to come forward. Congratulations, Kinshita. Class representative for postgraduate diploma in child guidance and family counseling of B.Ed first year section A, Parneet Kaur Sandhu, please come forward. Jahan to come forward. Congratulations, dear. And for the post of class representative of B.Ed second year section B, I request Anusha Goyal to come forward. A heartfelt congratulations. Everyone, thanks a lot. वी बनाते हुए भी कर लो. Teachers who play a prominent role in our lives. Teachers' Day is not just a formal day of celebration. It is a day of heartfelt gratitude. Our heartfelt welcome to respected Principal Ma'am, Dr. Richa Sharma, our incredible teachers who have touched our lives. Now, I warmly request all the teaching and non-teaching staff to gather here for the cake cutting ceremony. ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਅਜਾਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਉਣ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Discontent. A teacher is like fall with methods crisp and clear, lessons of bright colors and a happy atmosphere. A teacher is like winter while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. Teacher, you do all these things with a pleasant attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. Thank you. And this is the reason we feel the sense of belongingness, and we also feel the presence of warmth, love and care. A sincere gratitude from all of us to you.
to all the teachers, and to our vibrant audience for their unwavering and exuberant presence. Thank you so much. Thank you, dear students, for making our day really a special one. Thank you for your great efforts. And now, I request respected Agnes ma'am to please come on the stage and share a few words with us. A huge round of applause for the ma'am. आवाज़ आ रही है? मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ टीचर्स बैठे हैं और कुछ वुड बी टीचर्स बैठे हैं, तो अपने आप के लिए एक लेसन। बहुत खुशी हुई जब मैंने ये वीडियो देखे कि 1 महीने में तकरीबन 3 वीक्स ही हुए हैं और स्टूडेंट्स ने इतना कुछ सीख लिया। और ये मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ हमारा कॉलेज है जितना इतना लंबा आपके लिए ओरिएंटेशन रखा और हर दिन आपने कुछ ना कुछ नया सीखा। तो सबसे पहले इस टीचर्स डे पे कुछ और बताने से पहले मैं मेरे अपने टीचर जो सबसे पहले मेरे माँ बाप हैं उनको आज मैं नमन करती हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास लैंग्वेज ही ना आए, सोचो एक बच्चे को जो लैंग्वेज सिखाई वो किसने सिखाई? वो तो हमारे माँ बाप ने ही सिखाई। और मैं अभी देखती हूँ बुजुर्गों को घरों में या कहीं और, तो वो 2 दफ़ा बात पूछ ले तो बच्चे कहते हैं कि एक बार समझ नहीं आई। तो जब हमें नहीं आती थी तो माँ बाप पता नहीं अनगिनत बात पूछते थे। तो एक बुजुर्ग थे, वो टेस्ट लेने लगे अपने बच्चे का, तो उसने कहा कि ये क्या है? उसने कहा चिड़िया। बुजुर्ग को बच्चे ने, उसने फिर पूछा क्या है? उसने कहा चिड़िया। तो उसने फिर कहा, तो उसने कहा कि पिताजी अपने कानों का इलाज करवा दो। तो उसने कहा बेटा मैं सिर्फ चेक करना चाहता था कि ये जो भाषा है ये मैंने ही तुझे सिखाई, तेरी माँ ने ही सिखाई। तो आज जो फूल आपने हमें दिए हैं वो एक फूल पहले भी आपने दिया था जब मैंने बोला था, जब एडमिशन मिली थी। बहुत कम होंगे पर दिया होगा, कुछ तो जरूर लेके गए होंगे। तो आज भी जिन पेरेंट्स लोकल हैं जो हॉस्टलर हैं वो फ़ोन करना, एक ये फूल अपने माँ बाप के लिए लेके जाना, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी ये जो मानसिक शक्तियाँ दी कि जिसके कारण आप बीएड तक के सफ़र पूरा कर सके। और आपको फिर लाइफ में ऐसे टीचर्स मिले कि आपने बड़े अच्छे नंबर लेके बीएड, हमारे देश समाज में जो एडमिशन है वो आसान नहीं है। तो आपके लिए टीचर्स ने कितनी मेहनत की होगी, आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की होगी, तो वो मेहनत को याद करके आप ज़रूर आज सबका थैंक यू करना, जिसका थैंक्स डे, ब्रदर सिस्टर डे, टीचर्स डे। तो क्या आप खाना एक दिन ही खाते हैं? खाना तो रोज़ खाते हैं। तो ये थैंक्स करने का दिन तो हर रोज़ होता है। सुबह उठ के उनको अपनी प्रेयर्स में, उनको अपनी जो दिनचर्या में आपने जो थैंक यू बोलना होता है आते जाते वक्त। आपकी तो जनरेशन आप लोग भी नोट करेंगे, मैं तो कह के खड़ा करती हूँ कि बेटा टीचर्स निकल रहे हैं, खड़े हो जाओ। ये जनरेशन यहाँ तक पहुँच गई है। 5 मिनट यहाँ पे सुनना बड़ी दूर की बात है, उसमें भी इरिटेशन होती है कईयों को कि मैडम खड़े हो गए फिर भाषण सुनाएंगे। तो वो ज़माना था जब इतना लंबा टीचर्स हमें शिक्षा देते थे। तो मैंने अब देखा कि ये जो न्यू जनरेशन आ रही है ये बैठी रहती है, टीचर सामने से निकलते हैं। तो आपसे एक लेसन जो मैं यहाँ से देना चाहती हूँ कि देश समाज मिनिमम एटिकेट्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आपके टीचर या बड़ा आपके सामने से निकलेगा तो आपने ज़रूर खड़े होना है। वो अपने आप ही आप लोगों को बैठने के लिए कह दिया। और जो रूल्स हैं कॉलेज के वो आपने फॉलो करने हैं। ये अभी एक बुक रिलीज हुई इनर पीस, तो आप कह रहे थे कि कुछ बुक पे बोलो, मैंने कहा मैंने अभी पढ़ी नहीं, लेकिन इनर पीस मुझे जितना मैं समझती हूँ वो पर सेवा में है। अपने लिए जीने में कोई इनर पीस नहीं आता, अपने लिए सिर्फ जानवर जीते हैं जो खाते पीते हैं और बस उनकी वही दिनचर्या है, जो वो थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, अपना खाना खाया, जो भी उनका फूड है। इंसान का है कि वो दूसरों के लिए जिए। टीचर वो है जिसको हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो एक बात कहते हैं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप ने अपनी अमानत और देश ने अपना भविष्य आप लोगों को दिया हुआ है। अब नॉन अटेंडिंग टीचर क्या कर लेगा, कैसे अमानत को संभालेगा और कैसे देश के जो भविष्य है उसको बनाएगा।
जब क्लासेस में ही नहीं आना। तो वो ये जो नॉन अटेंडेंस का चक्कर चला हुआ है सारे पंजाब में, हमारे कॉलेज में ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमारे लिए सबकी अटेंडेंस कंपल्सरी है, वरना फिर आपको पता ही है लेक्चर शॉर्ट होते हैं। क्योंकि जब हम किसी डिसिप्लिन में पढ़ नहीं पाएंगे तो हम आगे अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे। तो हम डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, हम कुछ मॉरल वैल्यूज का भी आपके पास लेक्चर्स देंगे जो देते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है एक टीचर का, जो मैं हमेशा समझती हूँ, एक दयावान हृदय होना। अगर आपके अंदर सिंपैथी है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए तो आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते। ऐसे टीचर थे, वो अपने ऑफिस में बैठे थे, एक स्टूडेंट निकला और ठंड बहुत थी और वो देर से आ रहा था। उसने कहा कि बेटा ये लेट क्यों आ रहा है हर रोज। टीचर्स ने शिकायत की। तो मैं टीचर्स के लिए आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ ये घटना के द्वारा कि किसी की प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत होती है। एक डंडा जो हाथ में है वो हमारा हथियार नहीं होना चाहिए। एक दयावान जो दिल है वो टीचर का चाहिए। तो जब उसको प्रिंसिपल साहब ने अपने कमरे में बुलाया तो उसने क्या बोला, उसने कहा कि मेरे पिता की डेथ हो गई है, हमारे घर में कपड़े हैं नहीं, बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ देर से जाऊं ताकि ठंड बहुत है। तो वो प्रिंसिपल ने क्या किया, वो हमारी तरह का आम रूटीन के प्रिंसिपल नहीं थे। वो प्रिंसिपल थे जो 2000 रुपया 1914 की बात है, जब वो 2000 रुपया मंथली इनकम छोड़ के सिर्फ 20 रुपए में काम करने के लिए आ गए। पहले तो वैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। आज का तो नारा यही है ना, साडा हक इत्थे रख। तो उसमें वो तो है नहीं कि थोड़ा परोपकार भी कर लो। लेकिन आपको टीचर्स कितने अच्छे मिले हैं ये मैं आपको भी बताऊंगी कि वो इस एनवायरनमेंट में या अपने जो उनका इनहेरिटेंस था वो एनवायरनमेंट में आके कैसा बदल गया। तो वो टीचर को, वो बच्चे को उन्होंने क्या किया, अपना कोट उतार के उसको डाल दिया कि बेटा ये लो मेरा कोट ले जाओ, और फिर कुछ कपड़ा लेके दिया कि इसकी मदद को दो ताकि वो सिलाई विलाई का काम शुरू करके ये अपना डेली जो गुजारा कर सके। मेरे मदर भी टीचर रहे, तो मैं देखती हूँ कई पुराने बुजुर्ग मुझे मिलते हैं, मोगा में थे, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो वो कहते थे कि आपकी मदर हमें हमारे घरों से खींच के लाई टीचर बनने की, कि पढ़ लो फिर मैं टीचर बन सकूंगी। तो वो कहते मैं हैरान होती थी कि जब छुट्टी होती थी तब टीचर्स को मैडम नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। तो कहते वो बहन जी हमारे घर में पहुंच जाते, मेरे पिता को कहते, रिक्वेस्ट करते कि अपनी बच्ची को भेजो, ये बहुत पढ़ने के वो है। तो इसलिए आपके अंदर जो दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए वो डिसिप्लिन के साथ साथ, मॉरल वैल्यूज के साथ साथ एक ऐसा सिंपैथेटिक दिल होना चाहिए कि आपको अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ आ पहुंच सकते। और मैं अब ज़्यादा नहीं यहाँ पे खड़ा होना चाहती, बहुत टाइम हो गया। आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, इनको जिसको कहते हैं कि इनसे ले लेना 2 साल में जो भी ले सकते हैं। हर टीचर डेडिकेटेड टीचर है। ये टीचर अपना मैक्सिमम टाइम आप पे स्पेंड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इनको कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि एमएड में ये डोनेशन की फीस है, सबकी बाहर की फीस दो, और हम आपको ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट हैं उनको हम डेजिग्नेशन करवाएंगे। तो एक वाक्य है कि सब जगह से उस स्टूडेंट को कहा गया कि 30,000 फीस है, कोई कहे 50,000 फीस है, यूनिवर्सिटी तक ने बोला कि इतनी फीस है। लेकिन एक टीचर हमारे पास आया, एक टीचर के पास स्टूडेंट आया जिसको उसने जब 2 साल फ्री एमएड करवाई तो जाने वक्त कहता मुझे था कि सिग्नेचर करते वक्त आप फीस मांगोगे। तो ये ऐसे टीचर्स आपको मिले हुए हैं। उसमें कोई भी पुराना टीचर हो सकता है, कोई नए टीचर हो सकते हैं जो पैसों के लिए, आपके गिफ्ट के लिए आपसे काम नहीं करवाते। तो आपने बहुत सी हमारी अच्छी वैल्यूज हैं, उनको सीखना है। और एक ही बात मैं फिर कहूँगी कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक बुक रिलीज हुई है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि आपके घर में छोटी मोटी लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। किस किस के घर में लाइब्रेरी है? काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 15-20 निकले हैं जिनके घर में लाइब्रेरी है। क्योंकि जब हम फोन से देखते हैं तो फ्रेंड्स के बुक्स के जो पन्ने हैं या वर्ड्स हैं उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप नहीं होती। ये आप ध्यान में रखना। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं, वो शब्द। तो इसलिए अपने दोस्त बनाने के लिए किसी भी किताब को उसको बुक फॉर्म में पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी किताब पढ़ो, आधा घंटा पौना घंटा एक वक्त रखो कि आपने अपने कोर्स से अलावा भी किताब पढ़नी है। किताबें जो हैं वो दिमाग का, वो जो आपका खाना है वो खोल देती हैं। लेकिन हमारी जनरेशन की एक बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि दुर्दशा हो रही है कि हम, अभी मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं अगले 30 साल में 1 या 2 पागल हर घर में होंगे। इसका क्या मतलब है, समझ गए होंगे? वो पागल क्यों होंगे कि वो फोन पे इतना ज्यादा बैठे हैं कि उनका जो दिमाग की नसें हैं वो खत्म हो जानी है, उन्हें सीखना कुछ नहीं। और 1 या 2 पागल सेक्रेटरी के पास, डॉक्टर के पास पहुंचे होंगे, और वो अब भी तादाद बढ़ गई है। माँ बाप से बात करने की आपके पास वक्त नहीं है, फ्रेंड्स के साथ। मुझे तो लगता है ऊंची हंसना ही आपको आता, जोक पढ़ के मुस्कुरा के फोन बंद कर देते हैं। कौन कौन ऊंची हंसा है कभी? ये भी बहुत थोड़े हैं जो ऊंची हंसते हैं। क्योंकि वैसे तो चेयरमैन साहब की बातें याद आती है, वो कहते हैं जानवरों और इंसान में ये फर्क है कि जानवर हंसते नहीं, इंसान हंसते हैं। तो जानवर से भी ऊपर हंसना है, खेलना है, ये कॉलेज को एंजॉय करना है, जितना एंजॉय कर सको उतना अच्छा। बाद में लाइफ बड़ी पता नहीं कैसी मिलनी है, किसी को कितनी टफ हो जानी है। तो इसके लिए एंजॉय करो, मेरी यही आपके लिए कामना है। और बहुत खुश रहो। कोई प्रॉब्लम है, एक छुट्टी लेनी है तो सच बोल के छुट्टी लेना, छुट्टी मिल जाएगी। किसी दादे नाने को बीमार करने की जरूरत नहीं है, किसी को खुद बीमार होने की जरूरत नहीं है। ये भी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। मुझे लगता था कि क्यों झूठ बोलते, मैं तो बात ही नहीं समझ आती कि झूठ क्यों बोलते हैं। मैडम को फोन करो कि मैडम बारिश बहुत है, मेरा आने को दिल नहीं करता, तब भी मैडम हंसी से छुट्टी आना, मेरे दादाजी बीमार हो गए। मैंने कहा बेटा क्यों झूठ बोल रही है, 3 छुट्टियां हैं, 2 तुझे और चाहिए, तू वैसे ही कह दे मुझे दादाजी के पास रहना है तो मैं 2 और दे दूंगी। बेटा दादाजी के पास जा रही है तो 2 छुट्टियों के लिए और चली जा। तो बिना झूठ बोले छुट्टी लेके देखना, छुट्टी मिलेगी। अटेंडेंस पूरी रखना, और हमारे कॉलेज का जो कल्चर है उसे अपने ध्यान में रखना। और सबसे पहले सुबह अपने माँ बाप को नतमस्तक होना, उनके जरूर उनकी ब्लेसिंग्स लेके आना। सोने से पहले उनका हाथ अपने सर पे जरूर रख के जाया करो। फिर उनको गुड नाइट कमरे में बोल के ये कहा करो कि अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो। फिर देखना दुआओं का कितना आपके ऊपर वो खुलता है। तो वो मेरी अपने लिए भी यही कामना है कि मैं अपने और टीचर्स जो मैं बहुत मुझे सिखाया पढ़ाया उनको याद कर सकूं। आज के दिन आप भी उन सबको याद कर सकें। थैंक यू सो मच। I'm really grateful to the representative team of Raj Vidya Kendra, worthy faculty members and dear students for joining us today and making our event a successful one. Thank you everyone. And now we all will stand up for the national anthem. आज देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं और टीचर डे के बारे में बात करते हैं उनसे, उनकी टीचर्स के बारे में क्या Our teachers are so amazing, they are incredible and we all love them. Hello, happy Teachers Day to all the teachers out there.
यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हम आज उनके लिए छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, सो वी होप कि उनको पसंद आए।